Hello children, this is the chapter number 6 population and we are reading the population is primarily concerned with three major questions, that is population size and distribution, population growth and processes of population change, and characteristics or qualities of the population. And in the previous video we had studied about the population size and distribution and population growth and process of population change, and now today we will read about the characteristics or qualities of the population, which are their age, sex composition, literacy level, occupational structure, health condition, etc. So at first let's see the age composition. The age composition of a population refers to the number of people in different age groups in a country. It is one of the most basic characteristics of a population. To an important degree, a person's age influences what he or she needs, buys, does, and he or her capacity to perform. Consequently, the number and percentage of a population found within the children, working age, and aged group are notable determinants of the population's social and economic structure. The population of a nation is generally grouped into three broad categories. So first category is children, generally below 15 years. They are economically unproductive and need to be provided with food, clothing, education, and medical care. Now, working age, 15 to 59 years. They are economically productive and biologically reproductive. They comprise the working population. And third category is aged, which is above 59 years. They can be economically productive, though they may have retired. They may be working voluntarily, but they are not available for employment through recruitment. तो चिल्ड्रन, किसी भी देश की पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले एज कंपोजिशन बहुत मैटर करता है, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है ये मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है. तो पॉपुलेशन को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के वे से, और वो थ्री कैटेगरीज हैं चिल्ड्रन, वर्किंग एज और एजेड. तो चिल्ड्रन जो 15 ईयर्स से कम के होते हैं उन्हें इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव माना जाता है, क्योंकि वो अपने फूड, क्लॉथ, एजुकेशन और मेडिकल केयर पर दूसरों पर डिपेंड होते हैं. वर्किंग एज जो मानी जाती है 15 से 59 ईयर्स की मानी जाती है, जो कि इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव माना जाता है और साथ में बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव पर्सन्स भी माने जाते हैं. और यही जो है ये वर्किंग पॉपुलेशन कहलाती है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए. अब एजेड जो होते हैं वो अबव 59 ईयर्स होते हैं. ये प्रोडक्टिव भी हो भी सकते हैं और रिटायर्ड भी हो सकते हैं, पर इनका जो काम होता है ये इन्हीं की डिपेंडेंसी पर निर्भर करता है कि वो, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. लेकिन एम्प्लॉयमेंट के वे से देखा जाए तो इस एज ग्रुप के लोगों को एम्प्लॉय नहीं माना जाता है और उनको एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाता है. Now, second characteristics is sex ratio. Sex ratio is defined as the number of females per 1,000 males in the population. This information is an important social indicator to measure the extent of equality between males and females in a society at a given time. The sex ratio in the country has always remained unfavorable to females. अब जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन की वह है सेक्स रेशो. सेक्स रेशो को किस तरह से मेजर किया जाता है? 1000 मेल के ऊपर फीमेल कितनी है पॉपुलेशन में, इस तरह से उसे मेजर किया जाता है. और हमारे देश में देखा जाए तो जो फीमेल की कंडीशन रही है वो हमेशा से ही अनफेवरेबल रही है सेक्स रेशो के मामले में. अकॉर्डिंग टू सेंसस देखा जाए तो 1951 में 1000 मेल पर 946 फीमेल्स थी. वहीं 2011 में 1000 मेल्स पर 943 फीमेल्स हो गई. तो ये जो एक डिफरेंस है ये बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है. Next characteristic is literacy rate. Literacy is a very important quality of a population. Obviously, only an informed and educated
Citizen can make intelligent choices and undertake research and development projects. Low levels of literacy are a serious obstacle for economic improvement. According to the census 2011, a person aged 7 years and above who can read and write with understanding in any language is treated as literate. There has been a steady improvement in the literacy level in India. The literacy rate in the country as per the census of 2011 is 73%, 80.9% for males and 64.6% for females. अब चिल्ड्रन जो लिटरेसी है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है किसी भी पॉपुलेशन की। और ये तो जनरल बात है कि यदि जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड होगी या यदि सिटीज़न एजुकेटेड होंगे तो वो जो जितने भी वर्क हैं, जो भी डिसीजंस हैं, जो भी काम है वो सही तरीके से कर पाएंगे, चाहे वो रिसर्च के क्षेत्र हो, चाहे वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो, हर जगह पर वो अपना जो लिटरेसी लेवल है उसके हिसाब से वो सही डिसीजंस ले पाएंगे। तो हमारे देश में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो भी व्यक्ति जो 7 ईयर्स से ऊपर के हैं और वो पढ़ सकते हैं कोई भी एक लैंग्वेज को, यदि वो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं तो वो लिटरेट कहलाते हैं। और हमारे भारत में लिटरेसी लेवल जो है, लिटरेसी रेट जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। 2011 में 70% हो गया, जहां मेल का 80.9% और फीमेल का 64.6% है। सो चिल्ड्रन, हियर इज गिवन क्वेश्चन फॉर यू, व्हाई डू सच डिफरेंस एग्जिस्ट। अब आप देख रहे हैं कि मेल का परसेंट ज़्यादा है लिटरेसी लेवल में, लिटरेसी रेट में, और फीमेल का कम है, तो ऐसा क्यों है? यू हैव टू गिव द आंसर। Now, next characteristics of population is occupational structure. The percentage of population that is economically active is an important index of development. The distribution of the population according to different types of occupation is referred to as the occupational structure. An enormous variety of occupations are formed in any country. Occupations are generally classified as primary, secondary, and tertiary. Primary activities include agriculture, animal husbandry, forestry, fishing, mining, and quarrying, etc. Now, secondary activities include manufacturing industries, buildings, and construction work, etc. Now, tertiary activities include transport, communications, commerce, administration, and other services. तो चिल्ड्रन, पॉपुलेशन का एक इस कैरेक्टरिस्टिक जो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी है। हमारी इकोनॉमी को जो है वो 3 कैटेगरीज में जनरली क्लासिफाइड कर दिया जाता है। जो हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसे, पहला तो प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और थर्ड टर्टायरी। अब प्राइमरी जो सेक्टर है उसमें ज़्यादातर उन एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है जो कि जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, माइनिंग है, ये सारी चीज़ों को प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। टर्टायरी एक्टिविटीज़ में ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सर्विसेज जो होती हैं वो टर्टायरी सेक्टर में इंक्लूड की जाती हैं। तो चिल्ड्रन, डेफिनेटली इन सेक्टर्स का हमारे किसी भी देश की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा उसका असर होता है। जिस देश में सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप होता है वह देश ज़्यादा डेवलप माना जाता है। जहाँ पर प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा किया जाता है वह जो है वो विकासशील देश माना जाता है। नाउ, हेल्थ is also one of the characteristics of population. Health is an important component of population composition which affects the process of development. Sustained efforts of government programs have registered significant improvements in the health conditions of the Indian population. Death rate have declined from 25 per thousand population in 1951 to 7.2 per thousand in 2011, and life expectancy at birth has increased from 36.7 years in 1951 to 67.9 years in 2012.
अब चिल्ड्रन जो हेल्थ है वह भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पॉपुलेशन का, और यदि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, यदि हेल्थ प्रोसेस जो है वो डेवलप हो जाती है, हेल्थ गवर्नमेंट के हेल्थ प्रोग्राम जो है वो डेवलप हो जाते हैं, तो जो डेथ रेट है वो कम हो जाता है और बर्थ रेट बढ़ जाता है। तो चिल्ड्रन जिस तरह से इम्प्रूवमेंट होता है हेल्थ सेक्टर में, उस तरह से जो जैसे पब्लिक हेल्थ है वो ठीक होती जाती है। जो इन्फेक्शियस डिसीज़ वगैरह हैं उन सारी चीज़ों की वजह से जो डेथ रेट है वो कम होती जाती हैं और बर्थ रेट जो है वो बढ़ता जाता है। तो उस वजह से जो पॉपुलेशन जो है, हेल्थ भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि पॉपुलेशन को ठीक करने में या पॉपुलेशन को बढ़ाने में एक अपना योगदान देता है। Adolescent population. The most significant feature of the Indian population in the size of its adolescent population. It constitutes 1/5 of the total population of India. Adolescents are generally grouped in the age group of 10 to 19 years. They are the most important resource for the future nutrition requirements of adolescents are higher than those of a normal child or adult. Poor nutrition can lead to deficiency and stunt growth. But in India, the diet available to adolescents is inadequate in all nutrients. A large number of adolescents girls suffer from anemia. Their problems have so far not received adequate attention in the process of development. The adolescent girls have to be sensitized to the problem they confront. Awareness among them can be improved through the spread of literacy and education. तो पॉपुलेशन का एक इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एडोलसेंट भी हैं। एडोलसेंट जो टीनेजर्स होते हैं वो जनरली 10 से लेकर के 19 ईयर्स के एज ग्रुप को रखा जाता है, और ये हमारे देश के भविष्य हैं, फ्यूचर है। इसलिए यदि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड यदि मिलेगा तो ही ये सही तरीके से ग्रोथ कर पाएंगे, क्योंकि इस एज ग्रुप के लोगों को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। और हमारे भारत में मोस्टली देखा जाता है कि इन बच्चों को जो है वो उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है जितनी कि उन्हें ज़रूरत होती है। और इस हिसाब से देखा जाए तो फाइनली हमारे यहाँ ज़्यादातर इस तरह का सफ़र जो है वो गर्ल्स करती हैं, और जैसे उन्हें कई तरह की बीमारियाँ जैसे एनीमिया है ये सारी कॉमन हो जाती है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है इस तरफ बहुत प्रयास करती है, और इसके लिए सभी को अवेयर होने की ज़रूरत है और लिटरेसी लेवल एजुकेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि सभी लोग अवेयर हो करके जो ये बच्चे हैं इनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दिलवा सकें और हमारे देश को एक सही भविष्य, सही फ्यूचर इन बच्चों के द्वारा मिल सके। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी. Recognizing that the planning of families would improve individual health and welfare, the Government of India initiated a comprehensive family planning program in 1952. The Family Welfare Program has sought to promote responsible and planned parenthood on a voluntary basis. The National Population Policy 2000 is a culmination of years of planned efforts. The NPP 2000 provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age, reducing infant mortality rate to below 30 per 1,000 live births, achieving universal immunization of children against all vaccine preventable disease, promoting delayed marriage for girls, and making फैमिली वेलफेयर अ पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम। चिल्ड्रन, हमारे देश में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को 1952 में अडॉप्ट किया गया, और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है NDP 2000 यह बहुत ही लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँची है। अब NPP जो है 2000 यह प्रोवाइड करती है कि जो बच्चे हैं वो 14 ईयर्स के बच्चे हैं उनको फ्री स्कूल एजुकेशन प्रदान की जाए, और इसके साथ साथ उनको जितने भी जो डिसीज़ से प्रिवेंट करने वाले वैक्सीन हैं वो लगवाया जाए, और इसके साथ जो गर्ल्स की जो मैरिज है जो जल्दी हो जाती है, अर्ली मैरिज, उसे डिले करने का प्रयास किया जाए। और भी बहुत सारे ऐसे फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं जो चलाए जाते हैं, ताकि जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है इसके जो एम्स हैं उन्हें पाया जा सके और पॉपुलेशन को एक स्वस्थ समाज की ओर ले जाया जा सके।
NPP 2000 adolescents. NPP 2000 identify adolescents as one of the major section of the population that need greater attention. Besides nutritional requirements, the policy puts greater emphasis on other important needs of adolescents, including protection from unwanted pregnancies and sexually transmitted diseases. It called for programs that aim towards encouraging delayed marriages and child bearing, education of adolescents about the risk of unprotected sex, making contraceptive services accessible and affordable, providing food supplements, nutritional services, and strengthening legal measures to prevent child marriage. People are the nation's most valuable resource. A well-educated, healthy population provides potential power. तो चिल्ड्रन जो NPP 2000 प्रोग्राम है एडोलसेंट्स के लिए, यह ना सिर्फ उनके न्यूट्रिशन पर ध्यान देता है बल्कि और भी जो उनकी ज़रूरतें हैं उन पर ध्यान देता है, उनको अवेयर करने का प्रयास किया जाता है। जो ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं और जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज़ हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं, इन सब के लिए उनको अवेयर किया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपको क्या प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। ये प्रोग्राम्स इन चीज़ों पर बच्चों को अवेयर करने के लिए होते हैं और इसके साथ साथ जो चाइल्ड मैरिजेस हैं उनको डिले करने के लिए और भी जो समस्याएं हैं समाज में, उन जो कि बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, उन सब से उनको बचाने के लिए उनको अवेयर किया जाता है। और साथ में जो लोग हैं उनको स्वस्थ समाज की ओर ले जाने का, जो बच्चे हैं उनको स्वस्थ समाज की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है। जो हमारे देश के जो पॉपुलेशन है वह, यदि हम वैल्यूबल रिसोर्स उन्हें माने, यदि हम उसे रिसोर्स के रूप में देखें तो वो हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वैल्यूबल रिसोर्स है और उनका वेल एजुकेटेड और हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे लिए एक पोटेंशियल पावर की तरह काम करेंगे यदि हमारे देश की पॉपुलेशन हेल्दी और एजुकेटेड होगी तो चिल्ड्रन, here is your chapter number 6 finished, and here is also your geography part is finished. So you have to complete the exercise.